پی ٹی آئی کو یوم احتجاج پر بڑا تحفہ، عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت پی ٹی آئی کے بڑے نام پارلیمنٹ سے مائنس۔ الیکشن کمیشن نے 9 مئی کیسز میں سزا پانے والے 9 ارکان پارلیمنٹ نااہل قرار دے دیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل پر نااہلی کی تلوار چل گئی۔ صاحبزادہ حامد رضا، رائے حسن نواز اور رائے حیدر علی کی نشست خالی قرار۔ رکن پنجاب اسمبلی انصر اقبال، جنید افضل شاہی، رائے مرتضی اقبال بھی نشست سے محروم ہو گئے۔ نااہل ہونے والوں میں 5 ارکان قومی اسمبلی، 1 سینیٹر اور 3 ارکان پنجاب اسمبلی شامل۔ 31 جولائی کو انسداد دہشت گردی عدالت نے سزائیں سنائی تھیں۔ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے بنے ارکان پارلیمنٹ چوری کھانے والے مجنوں نکلے۔ گرفتاری کے خوف سے بانی پی ٹی آئی کے لیے سڑک پر نہ آ سکے۔ پی ٹی آئی ارکان ایوانوں سے دیکھتے رہے۔ تحریک انصاف کے دوستانہ احتجاج کی اندرونی کہانی۔ ارکان قومی اسمبلی نے خود پارلیمنٹ سے باہر جانے سے انکار کیا۔ اجلاس ختم ہونے کے باوجود پارلیمنٹ کی لابی میں بیٹھے رہے۔ چیف وہب عامر ڈوگر، شہریار آفریدی اور علی محمد خان باہر نہیں گئے۔ نثار جٹ، ثناء اللہ مستی خیل، بیرسٹر عمر نیازی اور الیاس گھمن بھی بیٹھے رہے۔ ارکان اسمبلی سے 2 ہاتھ آگے تو پارٹی سربراہ نکلے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر پارلیمنٹ آئے ہی نہیں۔ اپنے سیاسی اختلافات چھوڑ دے کہ میرے اس کیس میں کیا ہوا ہے، چھوڑ دے کہ میرے ساتھ یعنی کہ آج سے 5 سال پہلے کیا ہوا ہے۔ آئیں بیٹھتے ہیں، 108 ترامیم کا ایک مسودہ لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں پڑا ہوا ہے، آئیں سارے مل بیٹھ کے اس کو ایگزامن کریں دیانتداری کے ساتھ۔ اس میں تو کوئی سیاست نہیں ہے نا۔ ہم پہلے بھی تیار تھے، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ہم آج بھی تیار ہیں۔ آئیں اس ڈائیلاگ کے لیے بیٹھیں، سر جوڑ کے بیٹھیں، کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا۔ حکومت نے اپوزیشن کو 26ویں ترمیم پر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے ایوان بالا میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بہتری کی تجاویز دیں۔ ماحول گرم کرنے اور کاغذ پھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ If a member is absent without leave of the Assembly for 40 consecutive days of its sittings, the Speaker shall bring the fact to the notice of the Assembly, and thereupon any member may move that the seat of the member who has been absent be declared vacant under Clause 2 of Article 64. پی ٹی آئی ایم این اے شیخ وقاص کی نشست بھی خطرے میں آ گئی۔ اسمبلی سے مسلسل غیر حاضری پر نشست سے محرومی کا خدشہ۔ لیگی رکنی قومی اسمبلی نوشین افتخار نے شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش کر دی۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے رکنیت ختم کرنے کا اشارہ دے دیا۔ تحریک منظور ہونے پر نشست خالی قرار دی جائے گی۔ امریکی صدر کا مودی سرکار کو 24 گھنٹوں میں دوسرا جھٹکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ کہا بھارت کی روس سے تیل کی خریداری پر خوش نہیں۔ بھارت یوکرین میں روسی جنگی مشین کو ایندھن فراہم کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے چند دن قبل بھارتی درآمدات پر 25% ٹیرف لگایا تھا۔ ٹرمپ بھارتی معیشت کو مردہ بھی قرار دے چکے۔ جنت نذیر باندی کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے 6 سال پورے۔ یوم استحصال کشمیر پر ملک بھر میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ شہر شہر نگر نگر بھارت کے 5 اگست کے اقدامات کے خلاف ریلیاں اور مظاہرے۔ مختلف شہروں میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک مارچ، وزراء کی شرکت۔ حق کے خود ارادیت ملنے تک کشمیریوں کا ساتھ دینے کا عزم۔ شہدائے کشمیر کو زبردست خراج عقیدت۔ بھارت سری نگر میں دہلی سے حکومت چلانا چاہتا ہے۔ بھارت کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم استحصال کشمیر پر ریلی سے خطاب۔ کہا 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو آنکھیں نکال لیں گے۔ 6 طیارے گرنے سے بھارت کا غرور خاک میں مل گیا۔ قرارداد پیش کرتے کہ یہ ایوان پاکستان کے کشمیری عوام کے ساتھ ان کے جائز اور اصولی حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد میں جو متعلقہ اقوام متحدہ کی
सलामती कौंसिल की करारदादों में तस्लीम शुदा गैर मुतज़लज़ल सियासी सफारती और अखलाकी हिमायत का इआदा करता है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात मुस्तरद। कौमी असम्बली में यौम इस्तेहसाल जम्मू कश्मीर के हवाले से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों, बहादुर जुर्रत को खराज तहसीन पेश किया गया। अमीर मकाम ने कहा, हालिया मार्के में पाकिस्तान ने भारतीय फ़रौनियत खाक में मिला दी। मार्के हक़ के बाद अमरीकी सदर ने भी मसला कश्मीर के हल की बात की। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों का यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर में रैलियां, भारत के खिलाफ मुजाहरे। मुजफ्फराबाद में मरकजी शाहरा से आज़ाद चौक तक एहतजाज किया गया। मीरपुर, नक्याल, कोटली, वादी नीलम, भिम्बर में रैलियां। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर यौम स्याह मनाया गया। भारतीय फोर्सेज ने मजीद 5 कश्मीरी शहीद कर दिए। भारतीय फोर्सेज का मुहासरा 5 रोज से जारी है। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। भारतीय इक़दाम का मकसद कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को कमज़ोर करना था। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम इस्तेहसाल के मौके पर पैगाम। कहा, रवा साल यौम इस्तेहसाल गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत के गैर कानूनी और एकतरफ़ा इक़दामात की शदीद मज़म्मत। कहा, यौम इस्तेहसाल भारतीय बर्बरियत की एक संजीदा याद दहानी है। अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरियों की जदोजहद की हिमायत का इरादा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पाक अफवाज का कश्मीरी आवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराहान का मुश्तरका बयान। भारतीय कब्ज़े के खिलाफ कश्मीरियों की जायज़ जदोजहद की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया गया। कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तस्लीम शुदा है। 5 अगस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्मीरियों को खिराज तहसीन। कहा, भारत ने आइनी हैसियत मसख़ करके बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की। मोदी सरकार ने कश्मीरियों के आइनी हकूक़ और आज़ादी पर शब खून मारा। मकबूजा कश्मीर का बहरान आलमी बरादरी की बेहिसी का नोहा है। अमरीकी सदर की सालसी की पेशकश पर भी मोदी टस से मस न हुए। सरकारी मुलाजिम की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी। सनती वर्कर्स को 1220 फ्लैट्स मुफ्त दिए जाएंगे। मेहमान शख्सियात के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। मजदूर की तनख्वाह यकसां तौर पर 40,000 करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। 5वीं और 8वीं के इम्तहानात सरकारी तौर पर लिए जाएंगे। वाइस चांसलर के लिए कम अज़ कम 80% मार्क्स लेने की मंजूरी। मरियम नवाज़ ने कहा कि मजदूरों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। बिजली सारिफिन के लिए खुशखबरी। बिजली की मौजूदा कीमत में मज़ीद 77 पैसे फ़ी यूनिट कमी का इम्कान। बिजली की कीमतों में कमी चौथी समाही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मिलेगी। बैरून मुल्क मुआहिदों को पार्लियामेंट और आवाम के सामने लाया जाए। अमरीकी सदर की ट्वीट से आवाम को मुआहिदों का इल्म हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रब्बानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत और मादनियात का 50% सूबों का होता है। तमाम मुआहिदों में सूबों के हुकूक को नज़रअंदाज किया गया। नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा 57.5% से कम किया जा रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार सबसे ज़्यादा लेवी वसूल करने का इंकशाफ। माली साल 2024-25 में लेवी की वसूली में 201 अरब रुपए का इजाफा। पेट्रोलियम लेवी की वसूली 1220 अरब 21 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। पेट्रोलियम लेवी की वसूली ने IMF के तखमीने को भी पीछे छोड़ दिया। सदर आसिफ जरदारी से यूरोपीय यूनियन की सुबकदोश होने वाली सरबराह डॉक्टर रीना की अलविदाई मुलाकात। आसिफ जरदारी ने डॉक्टर रीना की पाकिस्तान और यूरोपीय ताल्लुकात के फ़रोग़ की खिदमात को सराहा। कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहती ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। मजबूत ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम और आलमी सलामती में अहम किरदार अदा करते हैं।
यूक्रेन में पाकिस्तानियों की मदाखलत के इल्ज़ामात मुस्तरद। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल का हामी है। यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों की शमूलियत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। यूक्रेनी हुकाम की जानिब से पाकिस्तान से ताहल कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया गया। इल्ज़ामात के हक़ में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किए गए। हुकूमत पाकिस्तान मामला यूक्रेनी हुकाम के साथ उठाएगी। गजा में बदतरीन भूख और कहत से इंसानी बहरान संगीन। भूख से मरते लोगों को देखकर यूनिसेफ भी चीख उठा। बमबारी और भूख से रोज़ाना 28 बच्चे मर रहे हैं। गजा में 5 हफ्तों में भूख से 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। 2 साल में भूख से 94 बच्चों समेत 188 ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई। 24 घंटों में खुराक के मुंतज़र मज़ीद 52 अफराद जान से गए। मुल्क भर में मानसून तूफानी बारिशें। दरियाई सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई चिनाब, जेहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल। बारिशों के बायस तरबेला डैम 94% और मंगला डैम 61% भर गया। PGMA के मुताबिक रवा साल मानसून बारिशों से पंजाब में 164 शहरी जाँ बहक हुए। मुख्तलिफ हादसात में 579 शहरी जख्मी हो चुके। 215 घर मुतासर, 121 मवेशी हलाक हुए। समुद्री तूफान फ्लोरस बरतानिया और आयरलैंड से टकरा गया। स्कॉटलैंड के साहिली इलाके में तूफान का अलर्ट जारी। परवाजें और ट्रेनें मनसूख हो गईं। तूफान की शिद्दत के बायस कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ताइवान के जनूबी इलाकों में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद हलाक, 77 जख्मी, 3 अफराद लापता हो गए। ताइवान में एक हफ्ते के दौरान 2000 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। चीन में भी तूफानी बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। कोलंबिया की सड़कें और गलियां नदी नाले में तब्दील। हांगकांग में शदीद बारिशों का 150 साला रिकॉर्ड टूट गया। हांगकांग में एक दिन में तारीख की सबसे ज़्यादा 355 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ब्लैक लेवल वार्निंग के बायस अस्पताल, स्कूल और अदालतें बंद कर दी गईं। सड़कें और सीढ़ियां आबशार का मंजर पेश करने लगीं। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। पानी का रेला, मकानात, दुकानें, होटल सब बहा ले गया। सैलाबी रेले से 6 अफराद हलाक, भारतीय फौजियों समेत 50 अफराद लापता। दरिया किनारे बिना भारतीय फौज का हेलीपैड भी सैलाबी रेले में बह गया। हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे का 1 साल मुकम्मल। बांग्लादेशी अवाम ने सड़कों पर जश्न मनाया। हज़ारों में शहरी सड़कों पर उमड़ आए। बांग्लादेश के बुरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने अपने पैगाम में कहा, मुल्क की तरक्की के लिए काम जारी रखेंगे। अगले साल मुनसिफाना, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात कराए जाएंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़। कौमी स्क्वाड फ्लोरिडा से वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया। खिलाड़ी कल ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ 8 अगस्त से शुरू होगी।